جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احباب زیبا کار، آج عید الفطر کا دن ہے۔ یہ مسلمانوں کے دو تہواروں میں سے ایک تہوار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خوشی کے لیے مقرر کیا ہے۔ یقیناً خوشی ہر انسان کو ہوتی ہے جو بھی مسلمان ہے، لیکن عید کی خوشی کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہمارے لیے آج کا دن خوشی کا دن بنتا ہے یا نہیں، کیونکہ خوشی تو اس کے لیے ہے جس کو رب تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اگر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی ہی نہیں مانگی، اگر ہم نے اپنے رب کو راضی ہی نہیں کیا، تو پھر آج ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہے۔ بچوں والی خوشی ہو سکتی ہے، کیونکہ بچوں کو خوشی کس چیز کی ہوتی ہے کہ نئے کپڑے پہنیں گے، اچھے سے اچھا کھانا ملے گا، کھیلیں گے کودیں گے، یہ بچوں کی خوشی ہے۔ اگر بچوں کی خوشی میں ہم شریک ہونا چاہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے کپڑے نئے پہن لیے، ہم نے کھانا اچھا کھا لیں گے آج، اور تھوڑا بہت آگے پیچھے سیر و تفریح کر لیں گے، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن گناہوں کے لحاظ سے اسی کے لیے خوشی کا دن ہے جس نے واقعتاً توبہ و استغفار کیا ہے، جس نے واقعتاً اپنے رب کو راضی کیا ہے، اس کے لیے خوشی کا دن ہے۔ محترم بھائیوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ عید کا دن ہے، کیا خشک ٹکڑے پانی کے اندر بھگوئے ہوئے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا، امیر المومنین آج عید کا دن ہے اور آپ خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا کمال کا جواب دیا، فرمایا عید اس کی نہیں ہے جس نے نیک کپڑے پہن لیے اور اچھا کھانا کھا لیا، بلکہ عید تو اس کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، جس کے گناہوں کو اللہ نے معاف کیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہم نے گزارا ہے، کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم کو رب نے معاف کیا ہے یا نہیں؟ کیونکہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جو سچے دل سے رب کے سامنے آنسو بہاتا ہے، رب تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کیا رب تعالیٰ نے ہمیں معاف کیا ہے؟ ہم نے یہ بات سوچنی ہے، اس طرف اپنے آپ کو لے کے جانا ہے کہ کیا رب نے ہمیں معاف کیا ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر ہم نے معافی مانگی ہوگی تو یقیناً رب نے معاف کر دیا ہوگا۔ اور اگر ہم سستی کرتے رہے، پورا مہینہ رب کے سامنے آنسو ہم نے نہ بہائے، پورا مہینہ رب کے سامنے ہم نے ہاتھ ہی نہ اٹھائے، نہ ہم نے نمازوں میں کی پابندی کی، نہ ہم نے اور کوئی اچھے کام کیے، تو پھر میرے بھائیوں یقیناً ہم ان خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوں گے جن کو رب نے معاف نہیں کیا ہوگا۔ خوشی کا دن ہے، لیکن رب سے معافیاں جس نے مانگی ہے، جس نے رب کو راضی کیا ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قد افلح من تزکا، اس کے لیے خوشی کا دن ہے، اس کے لیے کامیابی ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، آج سے پہلے ہم ہر عید کے خطبے میں یہ باتیں سنتے رہے کہ اپنی اصلاح کرو، اور اصلاح کے اوپر زور کس بات پر دیا جاتا ہے کہ اصلاح کرو نمازوں کی صرف، اصلاح کرو
सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ने की, हम यहां तक रखते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाह के अंदर हर वो चीज आती है जो कुरान के अंदर करने का हुक्म दिया गया, हर वो चीज आती है जिससे इस्लाम ने मना किया है। ये इस्लाह नहीं, और इसको इस्लाह नहीं कहते कि हम अल्लाह के घर में नमाज ईद पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हमारा चाल डाल, हमारा चेहरा, हमारे जो है ना कपड़े, हमारा हर लिबास इस्लाम के मुखालिफ हो। ईद के दिन हम बड़े अपने आप को आला समझते हुए जानबूझकर अपने कपड़ों को तख्ते से नीचे करते हैं, जबरदस्ती रब के रसूल की मुखालफत करते हैं, और हम समझते हैं कि हमने इस्लाह कर ली। जब हमारे जानों पर, हमारे जिस्मों पर रसूलुल्लाह का हुक्म नहीं चल रहा, तो फिर हमारी इस्लाह किस बात की है? हुकूकुल्लाह तो हम अदा करते ही कम है, लेकिन मेरे भाइयों, क्या हुकूकुल इबाद भी हमने कभी अदा किए? इंशाअल्लाह आज हुकूकुल इबाद के ऊपर सही बात होगी। जरा दिलो दिमाग की तख्तियां खोल के रखना, और ये बात याद रखना। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, मैंने एक जगह पे जुमा पढ़ाया, वहां पे मैंने कुछ इस्लाही पहलू बयान किए। अब बंदों के अंदर गलतियां होती है तो बंदे समझते हैं कि अटैक हो रहा है। वो बाद में एक बंदा मुझे कहने लगा, हाफिज साहब आए तो आपने 2-3 बंदों को खूब निशाना बनाया, सिर्फ उनको, हालांकि मैं बंदों को जानता ही नहीं था, मैं पहली मर्तबा गया था। अब इस्लाह करना हमारा काम है। हम जो है हर वो पहलू आपके सामने बयान करते हैं जो इस्लाम ने कहा है, कोई झिझक नहीं। अगर किसी में गलती है तो वो इस्लाह की तरफ आए, वो अपनी गलती को दूर करने की तरफ आए। ये नहीं कि उल्टा वो कहे कि आज मौलवी साहब गर्म हो गए, आज मौलवी साहब ने जो है ना हमें निशाना बनाया, इस तरफ नहीं आना। क्योंकि ये बात पहले अच्छी तरह नोट कर ले, जो इमाम, जो खतीब फर्द वाहिद को निशाना बनाता है, वो खतीब खतीब नहीं है, वो इमाम इमाम नहीं है, वो दीन का दाई नहीं है। क्योंकि दीन के दाई के लिए दीन पहुंचाना अहम होता है, बंदों को निशाना बनाना अहम नहीं होता। तो आज मैं दीन की बात करूंगा। अगर किसी के अंदर कोई गलती होगी तो वो अपनी इस्लाह करे, बजाय इसके कि ये मुझे निशाना बनाया गया है। इस तरफ ध्यान न करना, सोचना यह कि ये गलती है तो फिर मुस्बत पहलू से सोचना कि हम इसको दुरुस्त करेंगे। मेरे भाइयों, सबसे पहली हमारी गलती यह है कि हम अपने अखलाक को बेहतर नहीं करते। हमारे अखलाक बड़े कड़वे हैं। हम बोलते हैं तो अगला बंदा समझता है कि इसने मुझे पत्थर मार दिया है। अगर कोई बात कह दे तो हमें बड़ी कड़वी बातें लगती है। क्यों? दीन के ऊपर है आप। अगर आपको कोई बात सुनाई जा रही है तो बर्दाश्त करें। इस्लाम ने बर्दाश्त का हुक्म दिया, बर्दाश्त करना सीखें। और इसी तरह मोहतरम भाइयों, हमारे यहां जो एक बहुत बड़ी खराबी है वो नाराजगी की है। नाराजगियां, नमाजें लंबी लंबी पढ़ेंगे, क़याम लंबे लंबे करेंगे, कुरान की तिलावत कसरत से करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो राजी किसी के साथ नहीं होंगे, अपने ताल्लुकात बहाल नहीं करेंगे, हमारी आनाएं उसी तरह बाकी रहती है। और ये बात याद रखना, तुम्हारी जितनी लंबी से लंबी नमाजें क्यों नहीं है, तौहीद परस्त भी हैं आपके पास हर चीज मौजूद है, लेकिन आप अपने मुसलमान भाई से नाराज हैं, तो कभी ना सोचना कि तुम्हारा नेक अमल अल्लाह कबूल करेगा। नहीं होता कबूल। कोई बेशक कहता रहे उसकी ये गलती है, वो गलती है, कुरान ने हल बताया है। नाराज किसी से नहीं हो सकते। तुम्हारा जायदाद का मसला है, तुम्हारी अना का मसला है, तुम्हारी जात का मसला है, जो मसला भी है, नाराज नहीं हो सकते। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म जो है जिसके ऊपर नाराजगी बनती है वो है कि जब इज्जत पर हाथ डाला जाए। क्योंकि माल भी हकीर है, जब इज्जत पे बनती है तो माल की हैसियत नहीं रहती। लेकिन सहाबा किराम का अमल हमारे पास है कि नहीं? सैयदा आयशा पे तोहमत लगी, सैयदना सिद्दीक अकबर मिस्ता नामी सहाबी को
जो है ना मदद करते थे माल के साथ, रिश्तेदारी भी थी, लेकिन बेटी पर तोहमत लगी, बर्दाश्त ना हुआ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं बिल्कुल इस बंदे से बात नहीं करूंगा, ना ही मैं इस बंदे से कोई जो है ना कलाम करूंगा, ना इसको माल दूंगा। सैयदना अबू बकर ने जब ये बात की तो अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया कि जो माल वाले हैं, जो ताकत वाले हैं, जिनके पास माल है, क्या वो नहीं चाहते कि अल्लाह ताला उनको माफ करे अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करके। अब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कुरान की आयत सुनी तो आगे से ये नहीं कहा ठीक है कुरान की आयत है, मगर मेरी बेटी पे उसने ये बात कही है, मोमिनों की मां पे ये बात आई है, मैं नहीं राजी होऊंगा, मैं नहीं लाए, बल्कि फौरन कहते हैं क्यों नहीं, मैं तो अपनी रब की मगफिरत का तलबगार हूं, मैं तो उसको चाहता हूं। फौरन उठे, मिस्ता के पास गए, माल भी दिया, राजी भी हुए। ये है ईमान। हां, अगर आपको कोई ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, बार बार नुकसान पहुंचाता है, तो नाराज होना नहीं बनता, बल्कि इस्लाम कहता है कि बस सलाम करो, निकल जाओ, बातें कम कर दो, नाराज नहीं होना, बस जो ज्यादा मजलिसें हैं वो तर्क कर दो, सलाम करो, राजी हो जाओ, ये काफी है। और हमारे यहां एक और बड़ी मुसीबत है, और मैं एक दो पंचायतों में भी गया हूं, वहां पर मुझे एहसास हुआ, राजी होते माफ कर दिया, अगली लड़ाई होती है तो पैदाइश से लेकर उस दिन तक फिर सारी शुरू कर देते हैं, तूने ये किया था, ये किया था, ये किया था। ये माफी है? ये दिल साफ किए? दिल साफ को इसको कहते हैं आज मजलिस में बात हो गई, माफ कर दिया, अगर फिर मामला बना, अगली मजलिस में उस मजलिस से पहले की कोई बात भी ना छेड़ी जाए, किसी बात को ना दोहराया जाए, बस वो दिल से निकाल दी जाए। ये अखलाक है। ये पहली गलती। दूसरी वजह, गुनाहों को बढ़ोतरा देना, गुनाहों को आम करना। इसमें से एक चीज हमारे अंदर, बहुत से गुनाहों को हम आम करते हैं, लेकिन उनमें से एक चीज ये आती है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी औलादों की शादियां लेट करते हैं। ये बुराइयों को फैलाने वाली बात है। मेरे भाइयों, आज इतनी लेट शादियां की जाती हैं, 25-25 साल उम्र हो गई, वालिदैन क्या कहते हैं, अभी वक्त नहीं आया, अभी छोटा है। वो आजकल की खुराकें ब्रायलर मुर्गे की तरह है। जिस तरह ब्रायलर मुर्गे की उम्र थोड़ी होती है ना, बड़ा हो जाता है जल्दी, आजकल बंदों की भी यही हालत है। आगे बंदे 15 साल पे बालग होते थे, आज 10-11 पे बालग हो रहे। और उधर से हमारा काम क्या है, मोबाइल भी दे दिया, टीवी भी लगा दिया, ड्रामे भी देख रहे और शादियां भी लेट कर रहे। इसका नुकसान क्या होता है कि फिर हमारी औलादें बिगड़ जाती हैं, बाहर गैर शरी मोहब्बतें करते हैं, इश्क माशूकी की पींगे अड़ाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया है। ये हमारी गलतियां हैं। बच्चा जवान हो रहा है 11 साल में, शादी हम कर रहे हैं 25 साल के बाद। इल्ला माशाअल्लाह कोई एक हजारों में से निकल आता है कि जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे और वो बुरे काम की तरफ ना जाए। वगरना आज के मौजूदा दौर की बात कर रहा हूं, जो मोबाइल का दौर है। पहले तो चलो फिर गुजारा चल जाता था, क्योंकि ये मोबाइल नहीं थे तो लोगों को इतना इल्म नहीं था। आजकल तो ड्रामों और फिल्मों के जरिए हर चीज सिखाई जाती है, तो आजकल तो नौजवान बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। उनकी शादी जल्दी करना ही बेहतर है। शादियां हम बड़ी ताखीर से करते हैं। एक तो शादी जल्दी करें, दूसरी गलती हमारी शादी के अंदर यह है कि हमने बिला वजह रस्म और रिवाज की वजह से अपने ऊपर बोझ डाल लिया। अब जिना करना आसान हो गया, शादी करना मुश्किल हो गई, तो लोग जिना की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, शादी की तरफ कम आ रहे हैं। यूरोप वाला माहौल आज हमारे यहां बन रहा है, बुराइयां आम हो रही है, और मुसलमान बहन की इज्जत लूट रहा है। ताज्जुब होता है कि इंडिया वाले, इसराइल वाले मुसलमान बहनों की इज्जत लूटते हैं,
اور ہمیں بھی موبائل کے ذریعے سکھا رہے ہیں کہ تم بھی اپنے ملک میں اپنے مسلمان بہن کی عزت لوٹو، ادھر ہم کرتے ہیں ادھر تم کرو، لہذا مل کے بانٹتے ہیں، بیٹیاں بھی تمہاری ہیں مل کے بانٹیں گے۔ غیرت آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے مسلمان بہنوں کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کرتے ہوئے۔ اور اس سے اگلی غلطی کیا ہے کہ ہم اپنی اولادوں پہ جبرن فیصلے ٹھوستے ہیں۔ میں شادی اپنی بیٹے کی کروں گی، بیٹے کی یا بیٹے کی کریں گے، یا چچا کے ہاں سے، یا جو ہے نا ماموں کے ہاں سے، یا خالہ کے یا پھپھو کے۔ بھائی آپ کو ٹھیک ہے اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن آپ کو کس نے کہا ہے کہ زبردستی فیصلے ٹھوسنا جائز ہے؟ بیٹا تو ویسے ہی 18 سال بالغ ہو گیا، بیٹا تو ویسے ہی خود مختار ہے، اگر وہ شادی کرتا ہے والدین کو راضی کرے اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو اس کا نکاح درست ہوتا ہے۔ لیکن اگر بیٹی ولی کے بغیر شادی کرتی ہے تو وہ ولی کے بغیر والا نکاح ساری زندگی زنا گنا جاتا ہے، اور جو بیٹے بیٹیاں آگے پیدا ہوں گے وہ زنا والا جو زنا ہوں گے اور حرام کے ہوں گے، اور پھر بیٹیوں کی زبردستی شادیاں وہی کریں گے، بس یہاں سے ایک قدم نہیں ہلیں گے۔ کیوں بھائی؟ آپ کو پتا ہے نبی علیہ السلام کے دور میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کی زبردستی شادی کر دی۔ وہ بیٹی رسول اللہ کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آقا میرے باپ نے فلاں جگہ پہ میری زبردستی شادی کر دی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا آپ کی اپنی مرضی، اگر نکاح رکھنا چاہتی ہو تو رکھو، نہیں پسند تو خلا لے لو، ختم کر دو۔ بھائی یہ بات اچھی طرح سن لیں کہ اپنی بیٹیوں کی اپنے بیٹوں کی شادیاں ان کی مرضی کے مطابق کریں، کیونکہ پہلے دور میں آج کے دور میں بہت فرق ہے۔ پہلے پھر حیا کر جاتے تھے، آج کل تو سوائے لڑائی کے کچھ نہیں رہتا، ادھر جھگڑے ادھر جھگڑے، آج پنچایت کل پنچایت، کیوں؟ جب زبردستی فیصلے ٹھوکے جاتے ہیں۔ ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی تھوڑی آزادی دے۔ ہاں بیٹی کہتی ہے میں فلاں سے شادی کروں گی، والدین کا کیا کام ہے کہ بیٹیوں کی بتائی ہوئی جو جگہ ہے اس کی تحقیق کرے، دیکھے بچہ نیک سیرت ہے، برادری کوئی بھی ہے نیک سیرت ہے، دیندار ہے، اسلام پہ چلنے والا ہے، شادی کر دے۔ بے شک وہ کوئی بھی ہے نیک سیرت، دین پر چلنے والا، اور اگر بیٹی نے نشاندہی کی وہ بندہ اخلاق کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے آری ہے، ختم ہے، تو پھر بے شک اپنا سکا بھتیجا ہی کیوں نہ ہو، بانجا ہی کیوں نہ ہو، آپ کا جو ہے نا جو بھی رشتے میں ہے اس کو اپنی بیٹی نہ دے، وگرنہ دلیل ہوں گے بعد میں۔ یہ چیزیں سوچیں ذرا میرے بھائیوں، بیٹیوں کا بھی کوئی حق ہے، زندگی انہوں نے گزارنی ہوتی ہے، جس نے شادی کرنی ہے، جن دو نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے، زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے، والدین کو چاہیے ان کی خوشی کو بھی دیکھیں۔ اور ایک اور بات میں یہاں پہ کر دوں، یہ جو آج کل کی معشوقہ زندگی چلتی ہے نا، کہ پہلے ہی گپے لڑا رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ماں باپ کو ہماری وہاں سے شادی کرو، ہم جو ہے نا ان کو پسند کرتے ہیں، نہیں، یہ حرام کی ہے، اس کی تعلق شروعات پہلے سے ہی حرام کی ہے، ایسی جگہ پہ شادی کرنا جائز نہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی حرام کام کا ارتکاب شروع کر دیا ہے، کیونکہ یہ تعلقات اسلام کے خلاف ہیں۔ ایسی شادی نہ کریں، ہرگز نہ کریں، جو مرضی ہو جائے انکار کر دیں۔ ہاں ویسے ہی چلتے پھرتے کہیں کوئی بندہ سامنے آ گیا اور بیٹی نے کہہ دیا کہ ابو فلاں بندہ یا امی فلاں بندہ میں نے آج میری نظروں کے سامنے سے گزرا ہے، وہ مجھے اچھا لگا ہے، ذرا اس کے بارے میں تحقیق کرے، اگر بندہ اچھا ہے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو کیا تکلیف ہے، کر دیں شادی۔ یہ غلطیاں دور کریں اگر معاشرے کو امن والا دیکھنا چاہتے ہیں تو۔ اور اس سے اگلی غلطی، جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ آج ہمارے ہاں جائیدادیں تقسیم نہیں ہوتی، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے، دو تین نسلیں۔ ایک دفعہ مجھ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا
कहता है कि इस तरह जायदाद है तो किस तरह हक बनता है। मैंने कहा तकसीम पहले कैसे है? उसने कहा दादा परदादा से जगह तकसीम नहीं हुई, अब हम तकसीम करना चाहते हैं। अब क्या तकसीम होगी? कितने रिश्तेदार दुनिया से चले गए, उनका हक कहां गया? ये जो कहते हैं ना कि हमारे अंदर इत्तेफाक बड़ा है, कोई नहीं हम चलते रहेंगे, ये जुल्म है, ये शरीयत की मुखालफत है। इस्लाम ने कहा है बंदा दुनिया से चला जाए तो उसके बाद उसकी विरासत को जल्द ही तकसीम कर लेना चाहिए। जल्द से ये मुराद नहीं कि इधर से मैयत उठी और उधर से फौरन 2, 4, 6 दिन ठहर के जायदाद तकसीम करे। और फिर तकसीम करने पे गलती क्या है? हमारे यहां तकसीम किस तरह होती है? सब कुछ बेटों को दे दिया, बेटियों को कुछ नहीं दिया जाता। मेरे भाइयों, जायदाद तकसीम करने का तरीका यह है, मर्द फौत हुआ, बीवी मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, सबसे पहले बीवी को हिस्सा मिलेगा, फिर बच्चों को मिलेगा, फिर जब बीवी फौत होगी तो आगे बेटों में तकसीम होगा। डबल डबल तकसीम बनती है। हमारे यहां मां को पूछे नहीं जाता, बेटे अपना हिस्सा संभाल के वो जा रहे, ना बेटियों को पूछा जाता है ना मां को पूछा जाता है। और मां भी डरती है, बेटियां भी डरती है कि अगर मांग लिया तो भाई नाराज हो जाएंगे, आज के बाद गाड़ी नहीं आने देंगे। और कहते क्या है? वो लेती नहीं है। माल से किसको प्यार नहीं है? हमें प्यार नहीं है, उनको भी प्यार है। क्या वो अपने खामद से मुतालबे नहीं करती फलां चीज चाहिए, फलां चीज चाहिए? प्यार है माल से तो कहती है ना। सिर्फ डर होता है कि अगर भाइयों को हिस्सा मांग लिया भाइयों से तो भाई कहेगी कि आज के बाद मेरे घर की तरफ रुख ना करना, तो फिर कांपती है कि चलो कोई बात नहीं, माल जाने दो, भाई हाथ में रहे। और ये जो कहा जाता है ना कि कोई बात नहीं, माफ कर देती है। मुझे बताओ पूरी हिस्ट्री के अंदर, पूरी तारीख के अंदर कोई एक वाकया बयान करो कि भाई अमीर हो, कोई बहन गरीब हो और भाइयों ने कहा हो कि हम अपनी सारी जायदाद अपनी इस बहन को देते हैं, हमारे बाप की विरासत सारी हम भाई बहन को गिफ्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास पहले ही माल बहुत है। भाइयों ने कभी किया गिफ्ट? सिर्फ बेटियां क्यों, सिर्फ बहनें क्यों तोहफे दे रही है? ये बात समझने वाली है ना। आज तक कुर्बानी बहनें क्यों देती है, भाई कुर्बानी क्यों नहीं दे रहा? भाई ने कभी क्यों नहीं कहा कि मुझे माल नहीं चाहिए, जरा सारा आप रख लो, हमारे पास पहले ही बहुत है? भाइयों ने कभी कहा है? भाई तो करोड़पति होगा फिर भी कहेगा ये मेरा है। कुर्बानियां सिर्फ बेटियां बहनें ही देती है कि माल नहीं चाहिए, हमें रिश्ते चाहिए। तो ये हमें ख्याल कहीं नहीं, ये हम क्यों नहीं सोचते? हां, आप अपनी बहनों को कहे ये आपका है, आप ले लो। अगर कहती है कि नहीं लेना, आप कहें कि एक बार हमसे ले लो, हम खुश हैं। उसके बाद आप एक भाई को तोहफा देना चाहती है तो सिर्फ एक को तोहफा देंगे, हमें कोई परवाह नहीं है, हम नाराज नहीं होंगे। आप जिसको देना चाहती है उसको तोहफा कर दे। अगर 3-4 भाई हैं तो वो किसी एक को तोहफा देती है, कहती है मैं अपने फलां भाई को तोहफा दूंगी तो बाकी भाइयों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो माल उसका है, वो जहां मर्जी तोहफा करे। ये चीजें समझे। आज जायदाद के मसले में इतनी नाफरमानियां, और इस्लाम को समझे। इस्लाम को असल में पहले नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ना आ जाती थी, क्योंकि अदल इंसाफ था ना, तो वहां औरतें आ जाती थी। आज भी मेरे ख्याल अरब में ये मामला चलता है, जो लोग रहे वो जानते होंगे। आज भी अरब में तो औरतें मांग लेती हैं कि हमारा हिस्सा दो। असल में यहां पे जो जबर होते हैं ना, इससे बहनें कांपती हैं। यहां आकर उनके दिल कांप जाते हैं कि हमारी जाना अगर मांग लिया तो हमारा क्या बनेगा। मेरे भाइयों, अपनी बहनों को हिस्सा दो। अगर खुशी से वो किसी को भी देती है, सबको दे तब भी ठीक है, एक को दे तब भी ठीक है। आप यकीन दहानी करा दे कि भैया आप कहे बहना हम राजी हैं, बेशक अपने पास रखो, बेशक किसी एक को दो, बेशक अल्लाह के रास्ते में दे दो, हमारा कोई इतराज नहीं। ना हम आपसे नाराज होंगे, ना आपसे तलकात खत्म करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये चीजें जब आप यकीन दहानी कराएं और हल्फन कह दे, हकीकत बात है, हल्फन कह दे और कहना शुरू कर दे और 5-6 मरतबा मुख्तलिफ मौके पे हल्फन कह के जोर दे
देखो ना बहनें माल लेती हैं या नहीं, लेगी, क्योंकि प्यार तो सबको है, सिर्फ रिश्तों की पहचान। औरत ही कुर्बानी क्यों देती है, ये सोचे। आज जो दुश्मन की चाल कामयाब हो रही है ना, औरतें निकालती हैं कि हम आजाद होंगे, हमें ये वो, ये कुछ हमारी गलतियां भी हैं। जब हम अपनी औरतों के ऊपर जो जायज हुकूक है वो नहीं ना देते, फिर जाकर मसले बनते हैं। सारी गलती उनकी भी नहीं है, दुश्मन के हाथों खिलाना वो क्यों बनती है, मौका हम देते हैं। मेरे भाइयों, ये बातें समझें। ये दो तीन जो चीजें हैं, एक जायदाद का मसला, एक शादी का मसला, ये बड़ा अहम है, इसको डिस्कस करना इंतहाई जरूरी था, मैंने कर दिया है। हर बंदे तक हक बात पहुंचा दी है। और ये वालिदैन अच्छी तरह समझ ले। जो बात रह गई है थोड़ी सी करना चाहता हूं, अगर आप अपनी औलाद की शादी में तखीर करेंगे और जितने गुनाह वो करते जाएंगे, बराबर के गुनाहगार वालिदैन होंगे, बराबर के। जितना गुनाह बेटे को मिलेगा, जितना गुनाह बेटी को मिलेगा, उतना गुनाह मां को भी मिलेगा, बाप को भी मिलेगा। आज ये चीजें हमें समझ क्यों नहीं आती। हकीकत बात है, दो हदीसें जब से मैंने पढ़ी है, हकीकत बात है, मैं तो कांप गया हूं कि पूरी दुनिया में अगर आप गौर करें ना, पूरी दुनिया में, तो मेरे भाइयों अक्सरियत तो वो है जो इस्लाम कबूल ही नहीं करते, वो वैसे ही फारग हैं, इस्लाम कबूल ही नहीं किया। फिर कुछ रह गए जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया। अब उनके अंदर भी गलतियां ये है कि वो बिदअत और शिर्क के अंदर पड़ गए। और फिर उनमें से कुछ बचे जो अहले तौहीद है। अब अहले तौहीद में से कुछ क्या हुआ, दयूस बन गए। दयूस किसे कहते हैं, जिसकी मां बहन जैसी मर्जी तंग हो लिबास, जिसका लिबास तंग हो, बारीक हो, दुपट्टा उसके सर पर है या नहीं, जहां मर्जी घूमे उसको परवाह नहीं, तो ऐसा बंदा दयूस होता है। और दयूस के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है कि जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी दयूस को। और दयूस को जन्नत की खुशबू नहीं आएगी। याद रखें, एक बंदा पैदा होने से लेकर चलना शुरू करे और 40 साल तक मसलसल एक सेकंड भी आराम किए बगैर चलता रहे, जितना फासला वो 40 साल में तय करेगा, इतने दूर जाकर जन्नत की खुशबू आती है। और फरमाया दयूस को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अब कुछ अहले तौहीद इसमें आगे कि जो मर्जी होता रहे, औरतें जो है ना कहां पे पींगे लड़ा रही है, क्या कर रही है, कोई परवाह नहीं, घर में इकट्ठे बैठे ड्रामे देख रहे, हया नहीं, गैरत नहीं। बेटी के बीवी का या जो है ना बहन का दुपट्टा उतरा हुआ है, उसको परवाह ही नहीं। अदब के दायरे में मां है तो मां को दायरा बेटा मार नहीं सकता, गुस्सा नहीं कर सकता, क्योंकि मां है, मां का मुकाम पड़ा है। मां को प्यार से समझाए कि आप ये काम करें, नहीं करती तो वो मुजरम है, आप बरी हो जाएंगे। बड़ी बहन है तो जाहिर है आप उसे भी मार नहीं सकते, उस पर जबर नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, आप उसको भी प्यार से समझाएं, अमल करती है ठीक है, नहीं तो आप भरी है। लेकिन छोटी बहन, बीवी, बेटी, ये आपके इख्तियार में है, आप इस पर जबर भी कर सकते हैं, सख्ती भी कर सकते हैं। जबर से ये मुराद नहीं डंडा उठाया हड्डियां तोड़ दी और सर फाड़ दिया, जबर से मुराद ये है कि गुस्सा किया जाए, उनके ऊपर कुछ कैद लगाई जाए, आप ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। बीवी हो गई, बेटी हो गई और छोटी बहन हो गई, इस पर अगर थोड़ा जबर भी करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप बरी जुम्मा होंगे। अब कुछ लोग इस कैटेगरी में आ गए, कितने लोग निकल गए। अब पीछे बचते हैं कुछ अहले तौहीद जो पर्दे वाले भी हैं, जिनकी बेटियां, जिनकी बहनें, जिनकी माएं मुकम्मल पर्दा भी करती हैं, मुकम्मल इस्लामी हुदूद और कुयूद का ख्याल भी रखती है। अब उनके अंदर बीमारी क्या है, वो नाराज रहना शुरू करते हैं, इधर भी नाराजगी, उधर भी नाराजगी, हर किसी से पंगा। और ऐसे बंदे के अमल भी कबूल नहीं होते। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर सोमवार और जुमेरात को अल्लाह ताला के यहां नामा अमाल पेश होता है। जो बंदे नाराज होते हैं, अल्लाह कहते हैं इनके नामा अमाल को साइड में कर दो, मैं इनके नामा अमाल को कबूल नहीं करता।
हत्ता यस्तलिहा, 3 मरतबा नबी अलैहि सलाम ने कहा यहां तक कि ये राजी ना हो जाए, यहां तक कि ये राजी ना हो जाए। अब ये बात जब नबी अलैहि सलाम ने कह दी, अब आप 2 साल 3 साल नाराज रहते हैं तो आपके अमल गए, रोजे भी गए, नमाजें भी गई, ज़कात भी गई, हज भी गया, सब कुछ गया। और अगर इन्हीं 3 सालों 4 सालों 5 सालों में आपकी मौत वाक़ई हो गई तो आपके अमल किधर गए? आप तो नाराज ही हैं, राजी तो हुए नहीं। और अगर आपका फरीक मुखालिफ फरीक फोत हो गया, आप तो राजी हुए ही नहीं, आपके तो सारी जिंदगी के गए। वो तो चलो 2-3 साल के बाद फोत हो गया तो ठीक है, उसके तो 2-3 साल के गए, आपके सारी उम्र के गए। जब आप उसके बाद 12 साल रहे, 20 साल रहे, वो आपके अमल किधर गए? ये बातें हमें क्यों नहीं समझ आती? देखें यहां तक आकर कितने लोग फारग हो जाते हैं। ये 2 काम लाजमी करें, आपसे तहज्जुद नहीं पढ़ी जाती ना पढ़े, इशराक नहीं पढ़ी जाती ना पढ़े, आप कुरान की 1 आयत पढ़े, 2 आयतें पढ़े, 1 रुकू पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़ सकते ना पढ़े, लेकिन नाराज किसी से ना हो। 5 वक्त की नमाज सिर्फ पढ़े, थोड़ा कुरान पढ़े, थोड़े बहुत अज़कार करें, हराम से बचे और बाकी नाराज किसी से ना हो, इंशाल्लाह आपकी नजात है। आप पहले तो तौहीद होने चाहिए, 5 वक्त के नमाजी होने चाहिए और कुरान की तिलावत करने वाले होने चाहिए। बाकी आप अगर किसी से नाराज नहीं, आप दयूस नहीं, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हैं। लेकिन फर्क यह है कि हम यहां ये 2 कड़ागरियां हम में ज्यादा पाई जाती हैं। हम यहां पे आगे मार खाते हैं। आप यहां किसी से भी कह ले राजी हो जाओ, तो हमारे यहां राजी होने का नाम नहीं लेते। वो पिछली पूरी लिस्ट खोलेंगे और ये करते रहा है, वो करता रहा, क्या करता रहा है? भाई आपको जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत के लिए आप उसके पांव में भी पड़ना तो पड़ जाए, कोई बात नहीं। मुखालफत जितनी मर्जी है, राजी रहे, नाराज होने की जरूरत क्या है? ये बातें मेरे भाइयों समझने की है, इनके ऊपर अमल करने की जरूरत है। अगर कामयाबी चाहते हैं तो ये बड़ी अहम है। ये खराबियां जो हमारे माशरे में पाई जाती है, इनको खत्म करें और अपने आप को बदलें। ये रमजान इसी तरह सोकर नहीं गुजारा, तरबियत की है रमजान ने कि कुरान की आयत आए, नबी की हदीस आए तो आपके सामने फुल स्टॉप होना चाहिए कि यहां पे क्यों चूंकि चनाचे वाले अल्फाज नहीं होने चाहिए। बस अमल करो, बस अमल करो, ये बात याद रखना। ये चीजें समझे, इनके मुताबिक अमल करें, इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत की कामयाबी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में इताअत रसूल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सही मानों में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तमाम भाई खुशू व खुजू के साथ दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे साबका गुनाहों को माफ़ करे और आइंदा हमारी ज़िंदगी को अल्लाह ताला बेहतर बनाए। इसके लिए पूरे खुशू व खुजू के साथ दुआ करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब दुआ करते हैं।